Hake kena Delhi ni jantar mantar bo peacefully demonstration khlainai hake norok jotono saimano Sar David Murasing bo tipra ni simi New Delhi jora humi thamani norok jotono saimano kwbangma tiprasa ni dabi tlangai bini dabi hingke tiprasa accord je implement khaijak yang tomonte illegal Bangladeshi rok kwbangma tripra hapai tongfaimani amoni tei kwbangma action najak yang mani tei tiprasa rokni kaisa demand separate state Tipraland hake greater Tipraland ama sanglai tongmani amago kaisa bini demand tongo hake 9 September 2025 Delhi New Delhi ni jantar mantar location age ajagao peacefully kaisa demonstration khalinani tu PMO kaisa poster relaikha age te kaisa Sar David tini bini Facebook post khlaikha kana 9 September ro Delhi ni Lakshmi Narayan Mandir ni simi jantar mantar jora humi thanglani hnei kobokha tiprasa rokno ajagao tongnai tiprasa rokno bo age time rekha 11 am age bubagra bo omono tuino mia Facebook phaiye live kok sapaikha je New Delhi o amte haije Sar David Murasing jantar mantar peacefully kaisa demonstration khlainani bagui bo Tripura ni simi New Delhi jora humi thangmani yagulo kwbangma tiprasa rokni dabi tlangai age ajagao bubagra bo saka o jagao kuno politics ni flag tongla kuno politics ang amte politics party khayo hai khayo hnei ajagao sagala kuno politics ni kok sajagla o jagao just nung tiprasa ngai kaisa India ni nagorik hai ka citizen ngai o jagao kok salainai tiprasa ni mantai soktai rokno tui kok salainai hnei tomani bagi himale tabungni je o position tamuni je o situation nongmani yagulo joto borokno kirilaijak am Tripurani tiprasa leader rok phanang tung Assam ni leader phanang tung North East ni leader rok phanang tung especially kok sanani thanga ke belekeno kirilaijak tomani bagi himale nor joton saimano ka boti khlaikijaka aga akano protest khalinai kano sajak yang lainai oppose khalinai jotono obviously buagra somo tongo hage tiprasa kubui kok sana thaka or tiprasa jotono tongo tiprasa leader rok khoroksa khorokni badui hage Assam rok tai je North kwbangma no amono sajak hake amno tuino tabuk je o demand nobo je illegal Bangladeshi rokni kok nobo sajaknai amo tomani bagi himale bo o demand jaga bo illegal Bangladeshi je Tripura hapai tongmani amo bo tongo. Good evening, Chibai, Khulungkha, Namaste. I have come live on Facebook. मैं आज दिल्ली में हूँ एंड मुझे आपको कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज देना था। परसों 9 तारीख 9th of September डेविड मुरा सिंह जंतर मंतर में अगरतला से खुद पैदल यात्रा करके वो दिल्ली पहुंच चुका है और 9 तारीख को जंतर मंतर में एक नॉन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होगा और इस प्रोटेस्ट में ना कोई पार्टी पॉलिटिकल पार्टी का फ्लैग होगा ना कोई पॉलिटिकल हमको वोट दो या पॉलिटिकल कोई भाषण होगा। हमारा डिमांड जो डेविड ने उठाया है, जो दिल से उठाया है कि हमारा जो तिप्रासा का भविष्य है उसके बारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चिंता और परवाह करना पड़ेगा। हम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोलना चाहते हैं कि हम भी उनके बच्चे हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं और आपको जो त्रिपुरा का इंडिजिनस तिप्रासा है उनके बारे चिंता करना चाहिए। जो इलीगल माइग्रेशन हो रहा है बांग्लादेश से उसके बारे भी जैसे आपने आसाम में चिंता किया है, मणिपुर में चिंता किया है, मेघालय में चिंता किया है, पश्चिम बंगाल में चिंता किया है, वैसे ही आपको त्रिपुरा के बारे भी चिंता करना पड़ेगा। और जो तिप्रासा अकॉर्ड जो साइन किया गया था, इतना दिन हो चुका है, मीटिंग्स के ऊपर मीटिंग्स हो चुके हैं, तभी भी आपने इसको अभी तक कंक्लूड नहीं किया है। तो हमको जानना है कि क्या देरी है कि आप ये अग्रीमेंट को कंक्लूड नहीं कर रहे। तो ये एक यूथ डेविड मुरा सिंह त्रिपुरा से लेकर दिल्ली खुद पैदल चल के आया है। इस समय हमको पार्टी के बारे नहीं, हमको सॉलिडारिटी दिखाना चाहिए एज अ तिप्रासा। तो मैं 9 तारीख जंतर मंतर में रहूंगा, नॉट एज तिप्रा मोथा। तिप्रा मोथा इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज टू बी अ तिप्रासा फर्स्ट। और मैं सॉलिडारिटी के साथ उस दिन ना पार्टी का फ्लैग होगा,
हिंदुस्तान का फ्लैग होगा, इंडिया का, भारत का फ्लैग होगा, और वहां में हम अपना आवाज सिंबॉलिकली रखेंगे। मैं एक दो बात और बोलना चाहता था, इंपॉर्टेंट बात है, इसके लिए मैं आपको बोलना चाह रहा था। मैंने नोटिस किया है कि हमारे लीडर्स लोग चुप हो जाते हैं। मतलब कि अगर तिपरासा इतना कमजोर है तो मैं तिपरासा से एक सवाल पूछना चाहता हूं, व्हाई आर वी सो वीक? आज से 50 साल पहले जब TUJS था, तब श्यामाचरण त्रिपुरा था, नागेंद्र जमतिया था, द्रव कुमार रियांग था, रति मोहन जमतिया था, हमारे बहुत लीडर्स थे। उन्होंने जब आवाज उठाया तो उनके पास पैसा भी नहीं था, आज तो हमारे पास पैसा है। उनके पास कोई सुविधा नहीं था, आज तो सबके पास गाड़ी है, मोबाइल फोन्स है, कंप्यूटर है। उनके पास पक्का घर भी नहीं था, हमारे पास तो घर भी है। उनके पास पैसा नहीं था, शिक्षा नहीं था, तिपरासा के पास कुछ नहीं था। तभी भी तिपरासा आज से 50 साल पहले थानसा लाकर ADC के लिए हमने फाइट किया। आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हिम्मत नहीं। क्या हो गया हमें? वो वही त्रिपुरा है जिसको 1000 साल तक कोई मुगल हरा नहीं सका, अंग्रेज नहीं हरा सका। ये वही त्रिपुरा है जो स्वाधीन था। आज हमारे पास बहुत कुछ होके भी एक चीज नहीं है, हिम्मत, हौसला। आई आस्क ऑल ऑफ यू ऑल, अगर आपको अपने बच्चे के बारे, अपने नेक्स्ट जनरेशन के बारे परवाह है तो अपने बारे आज मत सोचिए, बच्चे का भविष्य सोचिए। अगर आज हम लोग एक नहीं होते हैं तो फ्यूचर ना आपका बच्चे का ठीक है ना हमारे का। मैं एक दो पॉइंट और उठाना चाह रहा था आप लोगों को बोलने के लिए। क्या आपने देखा नहीं है कि पिछले थोड़े दिन से क्या हो रहा है? हमें उकसाया जा रहा है, हमें ताना दिया जा रहा है, हमारे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। विश्रामगंज में एक लड़की के ऊपर कोई बलात्कार करने, मोलेस्टेशन करने की कोशिश करता है, और जब लोग रिएक्ट करते तो एक आदमी वहां से अरेस्ट किया जाता है, जो गुस्से में, क्योंकि एक लड़की के ऊपर बलात्कार करने का कोशिश किया गया तो उसने रिएक्ट किया तो उसको अरेस्ट किया जाता है। लेकिन अगरतला में एक छोटा सा दल है जो नारे देता है तिपरासा को प्रोवोक करने के लिए, बोलने के लिए कि हम यहाँ के राजा हैं, मालिक हैं, तेलियामुरा में मालिक है, यहाँ में मालिक है। ये जानबूझ के किया गया कि एक ट्राइबल तिपरासा इंडिजिनस सेंटिमेंट को उकसाने के लिए जानबूझ के किया गया, क्योंकि मैं जानता हूं कि 99.99% लोग जो बंगालीज भी है ये लोगों को समर्थन नहीं करते। लेकिन इनके खिलाफ एक FIR तो दर्ज होना चाहिए था, एक दो लीडर को पुलिस स्टेशन तो बुलाना चाहिए था कि तुमने भाई ऐसा क्यों स्लोगन्स दिया। लेकिन ना कोई अरेस्ट हुआ, न्यूज में आया, सबने देखा, लेकिन उनको जाने दिया। और विश्रामगंज में जब हमारा एक लड़की को कुछ किया गया तो उसको अरेस्ट किया जाता है। तो ये सबका साथ सबका विकास है, कानून तो सबके लिए एक होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। और इसमें मैं किसी को ब्लेम भी नहीं करता हूं, मैं ब्लेम करता हूं जो 99.9% को समझता है कि वो सब इनको समर्थन करते हैं। मैं अपने तिपरासा को भी बोलना चाहता हूं, 99.99% जो हमारे बंगालीज हैं वो ऐसे दल को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन उनको स्पेस किसने दिया, उनको जगह किसने दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये सवाल मैं बंगाली से क्यों करूं,
मैं उनसे करूंगा जिसके हाथ में प्रशासन है। कानून दो नहीं हो सकता, लेकिन ये होता ही तो ये प्रोवोकेशन है, ये प्रोवोकेशन है और मैं देख रहा हूं। लेकिन हम लोग भी तो व्हाट आर वी डूइंग आवरसेल्व्स? डेविड मुरा सिंह अकेले त्रिपुरा से दिल्ली पैदल चल के आया। मैंने थोड़े दिन पहले टीवी चैनल में देखा, हमारे जितेंद्र चौधरी जी, उन्होंने मजाक उड़ा दिया। डेविड मुरा सिंह का मजाक उड़ाया। जितेंद्र बाबू, मैं जानता हूं कि आपके दिल में हम सब के लिए प्यार है। मैं जानता हूं आपके दिल के अंदर कहीं ना कहीं हम सब के लिए प्यार है। आई नो दैट यू लव अस। लेकिन आपने पूरा जिंदगी एक रंग का पॉलिटिक्स पार्टी किया है और पार्टी में ये आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है कि आप ओपनली बात करें। मैं समझता हूं, लेकिन जितेंद्र बाबू, जब आप एक यूथ का मजाक उड़ाते हैं, आप यू आर अ वेरी सीनियर लीडर, you're a very senior leader, you've been an MP, you've been a minister, I know you personally, you're a very educated man as well, but जब आप mock करते, when you mock, when you make fun of our own people, you are not winning, आप नहीं जीत रहे हो, हंस रहा कोई और है। तो मैं आपको विनती करता हूं, आप नहीं आ सकते, नो प्रॉब्लम, आपके ऊपर प्रेशर है कि आप अटेंड नहीं कर सकते जंतर मंतर में, नो प्रॉब्लम, मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि ये मजाक डेविड मुरा सिंह का मजाक नहीं, ये मजाक तिपरासा कम्युनिटी का है। जब बाहर के लोग देखते हैं कि इनके बीच में एकता नहीं है, थानसा नहीं है, तो नुकसान किसका है? आज ये जो पूरा मूवमेंट है, ये सिर्फ मेरे परिवार के लिए तो नहीं है, ये तो आपके परिवार को भी सुविधा मिलेगा, ये तो गरीब लोगों को भी सुविधा मिलेगा। अधिकार और प्रिविलेज दो अलग चीज होते हैं। अधिकार मतलब 15 लाख तिपरासा को अधिकार, एजुकेशन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, लैंड राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स। प्रिविलेज मतलब 20-21 लोगों को बॉडीगार्ड, घर, सैलरी, लाल बत्ती, पेंशन। हमको 21 लोगों को अधिकार देना है, प्रिविलेज देना है, वो 5 साल के बाद भी चला जाएगा, या 15 लाख को देना है, क्योंकि 15 लाख में वो 20-21 लोग भी होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आपको अगर लगता है कि बुबागरा, प्रद्योत, जो भी आप बोलना चाहे, अगर आपको लगता है कि मैं आपका दुश्मन हूं, मैं आपका शत्रु नहीं हूं, और अगर आपको लगता है कि मैं हट जाऊंगा तो आई एम विलिंग टू लीव एवरीथिंग, मेरे लोगों को कुछ दे दो, मेरे लोगों को और उनके बच्चे को कुछ दे दो, मैं सामने से हट जाऊंगा। लेकिन अगर मेरे लोगों को और मेरे नेक्स्ट जनरेशन को कुछ नहीं मिला, तो मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूं, सरकार के संग लड़ने के लिए भी तैयार हूं और मरने के लिए भी तैयार हूं। मैंने बहुत देखा है जिंदगी, और जिंदगी में अगर आप किसी को सहायता कर सकते हो, किसी के दिल में मुस्कान ला सकते हो, इफ यू कैन मेक समवन हैप्पी, अगर गरीब को आप हेल्प कर सकते हो, एक यूथ को एक आशा दे सकते हो, एक मां को एक घर के ऊपर छत दे सकते हो, एक भूखे को पेट में खाना दे सकते हो, एक यूथ को ट्यूशन फीस भर सकते हो, तो इसका आशीर्वाद आपको सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं, ऊपर भी देयर इज गॉड, भगवान भी देगा।